Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello my dear students, welcome back to the mathematics class. Today in this video I will start the new chapter simple equations. You have learned about algebraic expressions in previous class. Algebraic expression कैसे फॉर्म होता है? We use variable and constant to make an algebraic expression. Let us consider the example of an algebraic expression. 4x plus 5. It is an algebraic expression where x is the variable or algebraic factor and here 5 is constant, 4 is the coefficient of x. If we use here equal sign, that is equality, suppose 65, then we say it is an equation. कोई भी algebraic expression में equality sign use करने से वो algebraic expression equation में बदल जाता है. ओके, सो equal sign इसमें दे दिया 4x plus 5 is equal to 65, so it becomes an equation. This equation is satisfied for some value of x. If we put x is equal to 1, देखिए 4 into 1 plus 5, you will get 4 into 1, that is 4 plus 5 is equal to 9. But here right hand side is 65 and which is not equal to 65. Okay, if we put 4 का प्लेस में अगर 5 पुट करने से 5 plus 5, so 4 5s are 20 plus 5, that is 25, which is not is equal to 65. So right hand side and left hand side are not equal. अभी in place of x if we put 10, 4 into 10 plus 5, 4 10s are 40 plus 5, that is 45, which is also not is equal to 65. If we put x is equal to 15, then we will get 4 into 15 plus 5, 4 15s are 60 plus 5, which is equal to 65. Therefore, right side and left side of this equation are equal for the value of 15. That is, when x is equal to 15, the right hand side and left hand side of these equations are equal. So here the value of x, that is 15, is called the solution of this equation. Okay, इसका मतलब जो वैल्यू ने, जिस वैल्यू ने इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इक्वेशन को सेटिस्फाई मतलब जिस वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन का राइट साइड एंड लेफ्ट साइड इक्वल मिल जाता है, that value is called the solution of this equation. Okay, let us see one more examples. 7x plus 5 is equal to 19. It is an example of an equation क्योंकि इसमें equal sign है. Here the right hand side is 19 and the left hand side is 7x plus 5. अच्छा, if we put x is equal to 1, if we put x is equal to 1, then left hand side हमको क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड 7 into 1 plus 5, so 7 ones are 7 plus 5, that is 12, but the right hand side is 19, so not is equal to right hand side. Okay, अच्छा, if we put x is equal to 2, अभी x is equal to 2 के लिए देखिए 7 into 2 plus 5, 7 2s are 14 plus 5, that is 19. लेफ्ट हैंड साइड मिल गया 19, राइट हैंड साइड ऑल्सो 19. ठीक है, सो दिस वैल्यू ऑफ x, दैट इज x इज इक्वल टू 2, इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. x इज इक्वल टू 2 इज ए सोल्यूशन ऑफ 7x plus 5 is equal to 19. Okay, the equation 4x plus 5 is equal to 65. एजुकेशन है, इसको 65 is equal to 4x plus 5 ऐसा भी लिख सकता है. ओके, और if suppose 4x plus 5 is equal to 6x minus 3, इसको क्या लिख सकता है? 6x minus 3 is equal to 4x plus 5. That is, the right side and left side of an equation can be interchanged. ठीक है, जो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, इसको इंटरचेंज करने से भी इक्वेशन का कोई भी चेंजेस नहीं होता है. जैसे मैं एक एग्जांपल बोल सकता हूँ, सपोज राम का एज रहीम का एज का बराबर है,
इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, रहीम का एज राम का एज का भी बराबर है, इसमें तो कोई गलत नहीं है। ओके, सो 4x + 5 = 65 होने से 65 = 4x + 5, इसको हम लोग इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, कोई भी स्टेटमेंट को हम लोग इक्वेशन का फॉर्म में भी लिख सकता है। ओके, जैसे द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32। एक क्वेश्चन का अच्छा से समझना चाहिए। देखो मैं एक बात बता रहा हूं, इफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस देन यू कैन फाइंड द आंसर फ्रॉम द क्वेश्चंस ओनली, क्योंकि जो आंसर होता है क्वेश्चन में छिपा हुआ रहता है। ठीक है, देखिए द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11, किसका किसका सम्स, 3 टाइम्स x, 3 टाइम्स मीन्स 3x, x का 3 गुना का साथ 11 को सम करने से, दैट इज 11 को ऐड करने से 32 मिल जाता है। x का 3 गुना मतलब थ्राइस x, उसका साथ क्या सम करना है, 11 सम करना है। इफ वी ऐड 11 देन वी विल गेट, क्या मिलता है, दैट इज 32। ओके, सो दिस इज द आंसर। The next statement is if you subtract 5 from 6 times a number you get 7। इसमें क्या बोला है, एक नंबर का जो 6 टाइम्स है उससे 5 सब्ट्रैक्ट करने से आपको 7 मिलेगा। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन का अच्छा से पढ़ना है और क्वेश्चन का अच्छा से समझना चाहिए। तो इसमें ए नंबर इज नॉट मेंशन्ड हियर, उसमें क्या नंबर है उस फिक्स्ड नहीं है, दैट इज द वेरिएबल। हम लोग के वेरिएबल को फर्स्ट क्या करना है, एज्यूम करना है। ओके, उसको एज्यूम करके उसका 6 टाइम्स से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है और 5 सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिल जाता है, 7। ठीक है, ओके, सॉल्यूशन देखो हम लोग क्या करना है, एज्यूम करना है, लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब ये जो नंबर है इसका 6 टाइम्स दैट इज 6x, इससे 5 सब्ट्रैक्ट करने से, दैट इज इफ वी सब्ट्रैक्ट 5 और -5 करने से क्या मिल जाता है, दैट इज 7। सो दिस इज द इक्वेशन। और इसका कन्वर्सली एक इक्वेशन से हम लोग स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 6x - 5 = 7, इसका हम लोग कैसे लिख सकता है, इफ वी सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ ए नंबर you will get 7। another way हम लोग लिख सकता है, if you taken away 5 from 6 times of a number you will get 7। okay, let us now start the exercise 4.1। the first question is complete the last column of the table। first question is x plus 3 equal to 0, the value is x is equal to 3, say whether the equation is satisfied or not। okay, x equal to 3 यहाँ पुट करके देखेंगे, अगर x = 3 पुट करके राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड सेटिस्फाई होता है तो विल राइट येस, अदरवाइज विल राइट नो। ठीक है, रफ वर्क करके देखिए, x + 3 = 0, x + 3 = 0, दिस इज राइट हैंड साइड एंड दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। x का वैल्यू पुट करना है 3, 3 + 3 इज इक्वल टू 6, विच इज नॉट इज इक्वल टू 0। सिंस x = 3 वैल्यू ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, देयरफॉर x = 3 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, और इसने सेटिस्फाई नहीं किया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नो। नेक्स्ट वन इज x + 3 = 0, x = 0, x का प्लेस में 0 पुट करके देखिए, 0 + 3, 0 प्लस मीन्स 3 बट राइट हैंड साइड इज 0, सो इट इज ऑल्सो नो। नाउ x = -3, अभी -3 पुट करके देखिए, -3 + 3 दैट इज 0। इसमें देखिए x + 3 इज इक्वल टू 0 है, x का वैल्यू -3, इसमें -3 पुट कीजिए, -3 + 3, -3 + 3 इज इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड में भी 0 है, सो इट इज यस, क्योंकि x = -3 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। नेक्स्ट इक्वेशन इज x - 7 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 7, इसमें 7 पुट करके देखिए, 7 - 7 दैट इज 0 बट राइट हैंड साइड इज 1, सो इट इज नो। x = 8 पुट करके देखिए, अभी इसमें x = 8 इज गिवन, सो x = 8 पुट करने से 8 - 7, 8 - 7 इज इक्वल टू 1, सो राइट हैंड साइड इज ऑल्सो 1, देयरफॉर इट इज यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5x = 25, वैल्यू ऑफ x इज 0। अभी इसको चेक करना है वेदर दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड और नॉट बाय द वैल्यूज ऑफ x, दैट इज x = 0 में ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है और नहीं होता है, उसी को चेक करना है।
ठीक है। 5x इज इक्वल टू 25, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। द वैल्यू ऑफ x इज गिवन 0, दैट इज 5 इंटू 0, इसका वैल्यू हो रहा है 0, लेकिन राइट हैंड साइड में है 25, सो इट इज नो। नेक्स्ट वन इज 5x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15, अभी x का प्लेस में 15, सॉरी x इज इक्वल टू 5, x का प्लेस में 5 पुट करना है, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, राइट हैंड साइड ऑल्सो 25, सो इट इज yes. द नेक्स्ट वन इज फॉर द सेम इक्वेशन x इज इक्वल टू -5, x का प्लेस में -5 पुट करने से दैट इज 5 इंटू -5 इज इक्वल टू -25, बट राइट हैंड साइड इज 25, they are not equal, hence it is no. Next one is m by 3 is equal to 2, where m is equal to -6, m by 3 is equal to 2, okay, m is equal to -6, m का प्लेस में -6 पुट करना है, -6 by 3, -6 by 3 means -2, but the right hand side is 2, so -2 and 2 are not equal, hence this is no. The next equation is same equation, but the value of m is equal to 0, m by 3 is equal to 2, m का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0, 0 by 3 is equal to 0, क्योंकि 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करने से 0 ही होता है, एक्सेप्ट 0 से हम लोग कोई नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता है। सो इसमें लेफ्ट हैंड साइड है 0, राइट हैंड साइड 2, सो दे आर नॉट इक्वल, हेंस इट इज नो। The last question is m by 3 is equal to 2, the value of m is equal to 6. So m by 3 is equal to 2, this is right hand side, left hand side, the value of m is 6, so 6 by 3, 6 को 3 से डिवाइड करने से 2 होता है, right hand side also 2, hence here yes. Next question number 2 is check whether the value given in the brackets is a solution to the given equation or not. Here first question of question number 2 is n plus 5 is equal to 19, n is equal to 1, ये जो n is equal to 1 इस इक्वेशन का सोल्यूशन होता है और नहीं होता है उसी को चेक करना है। सोल्यूशन कब होता है, इफ द राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल फॉर द गिवन वैल्यूज, ओके। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में पुट करने से अगर दोनों बराबर हो जाता है, दोनों साइड इक्वल हो जाता है, देन वी से दिस इज ए सोल्यूशन, अदरवाइज इट इज नॉट ए सोल्यूशन, ठीक है। सो फर्स्ट विल राइट द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है n प्लस 5, n का वैल्यू 1, सो 1 पुट कीजिए, 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6, बट राइट हैंड साइड इज 19, which is not is equal to right hand side. जब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं मिल रहा है, therefore n is equal to 1 is not a solution, is not a solution of किसका, n plus 5 is equal to 19, n plus 5 is equal to 19, okay. The next question of question number 2 is 7n plus 5 is equal to 19, where n is equal to -2, n is equal to -2, ये जो इक्वेशन है इसका सोल्यूशन होता है और नहीं होता है उसी को चेक करना है। फर्स्ट आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज 7n plus 5 फॉर n is equal to -2, n is equal to -2 के लिए 7n plus 5 का वैल्यू फाइंड करूंगा, ओके। n is equal to -2 पुट करना है इसमें, 7n plus 5, n is equal to -2, that is 7 into -2 plus 5, 7 2s are 14, here -14 plus 5, -14 plus 5 is -9, but right hand side is 19, which is not is equal to right hand side. Therefore n is equal to -2 is not a solution, is not a solution of 7n plus 5 is equal to 19. The next equation is 7n plus 5 is equal to 19, where n is equal to 2. The equation इसमें same है, but the values of n are different. इसमें n is equal to 2 दिया है, ठीक है। अभी n is equal to 2 के लिए इसको चेक करना है, ओके। तो solution और verification, left hand side is equal to 7n plus 5, where the value of n is equal to 2,
n का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, n इज इक्वल टू 2, दैट इज 7 इज इक्वल टू 2 प्लस 5, 7 2 जार 14 प्लस 5, 14 plus 5 is 19, okay, which is equal to right hand side. Therefore n is equal to 2 is a solution of the equation 7n plus 5 is equal to 19. अभी देखिए सेम इक्वेशंस का अलग अलग वैल्यू के लिए हम लोग क्या क्या है चेक क्या है, फर्स्ट n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक किया है तो सोल्यूशन नहीं मिला है, n इज इक्वल टू -2 के लिए चेक किया है फिर भी सोल्यूशन नहीं हुआ है, फाइनली n इज इक्वल टू 2 के लिए जब चेक किया है तब देखा है क्या है, n इज इक्वल टू 2 इज ए सोल्यूशन ऑफ 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19. अभी जो सोल्यूशन फाइंड किया है, ये जो मेथड में जो फाइंड किया है, फर्स्ट टाइम हम लोग क्या हुआ है एरर मिल गया, सेकेंड टाइम एरर मिल गया, फिर भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 2 के लिए इसके देखा है तो n इज इक्वल टू 2 के लिए फाइनली क्या मिला है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल मिल गया, दैट इज n इज इक्वल टू 2 क्या, इट इज ए सॉल्यूशन. ये जो मेथड है इसको बोला जाता है ट्रायल एंड एरर मेथड. ओके, ऐसा करके अगर हम लोग एक इक्वेशन को सॉल्व करके सॉल्यूशन निकाल देंगे तो वो जो मेथड है, दिस मेथड इज नोन एज द ट्रायल एंड एरर मेथड. ट्राई करो एरर मिलेगा, फिर ट्राई करो एरर मिल सकता है, फिर ट्राई करो एरर मिल सकता है, लेकिन फाइनली यू कैन एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन. द नेक्स्ट इक्वेशन इज 4p minus 3 is equal to 13. द वैल्यू ऑफ p is 1. p is equal to 1 के लिए इसको चेक करना है whether p is equal to 1 is a solution or not. ओके, सॉल्यूशन इसको सॉल्व करना है. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 4p minus 3. 4p minus 3 दैट इज 4 इंटू p का वैल्यू 1 है, 1 पुट कर दूंगा minus 3, 4 1s are 4 minus 3 that is 1, but right hand side is 13, so which is not is equal to right hand side. Therefore p is equal to 1 is not a solution, is not a solution और रूट भी बोला जाता है, is not a solution of the equation 4p minus 3 is equal to 13. The next is the same equation, just the value of p is different. इसमें p का वैल्यू दिया है -4. अब in place of p we will put -4, that is 4 into -4 minus 3, 4 into -4 that is -16 minus 3, -16 minus 3 is -19, but the right hand side is 13, so not is equal to right hand side. Hence p is equal to -4 is not a solution, is not a solution of 4p minus 3 is equal to 13. For the same equation the value of p is given 0, p is equal to 0 के लिए भी देखना है. ओके, लेफ्ट हैंड साइड इज 4p minus 3, 4 into the value of p is 0, 0 पुट करना है -3, 4 into 0 that is 0 minus 3, 0 minus 3 is -3, but right hand side is 13, so not is equal to right hand side. Therefore p is equal to 0 is not a solution, is not a solution of 4 minus 3 is equal to 13. Question number 3, solve the following equations by trial and error method. The first question is 5p plus 2 is equal to 7. अभी p का वैल्यू हम लोग को एज्यूम करना है, एज्यूम करके इक्वेशन को सॉल्व करना है. ओके, जिस वैल्यू के लिए p का जिस वैल्यू के लिए राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा वो वैल्यू होगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन. ठीक है, फर्स्ट आई विल पुट p इज इक्वल टू 0. If p is equal to 0, then left hand side that is 5p plus 2 is equal to what? देख लीजिए, 5 into p means 0 मान लिया plus 2, 5 into 0 that is 0 plus 2 that is 2, which is not is equal to right hand side. Hence error मिल गया. ठीक है, therefore p is equal to 0 is not a solution, is not a
solution of 5p plus 2 is equal to 7। जो एरर मिल गया तो अभी और एक बार ट्राई करेंगे, नेक्स्ट ट्राई। ओके, नेक्स्ट ट्राई में हम लोग क्या पुट करेंगे, p इज इक्वल टू 1। अभी p इज इक्वल टू 1 पुट करके देखेंगे। आप p इज इक्वल टू 2 भी पुट कर सकते हैं, p इज इक्वल टू -1 भी पुट कर सकते हैं, अपना हिसाब से आप पुट कर दीजिए ताकि हम लोग को फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना है। इफ p इज इक्वल टू 1 देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 5p plus 2। In place of p we'll write 1, that is 5 into 1 plus 2, 5 ones are 5 plus 2, 5 plus 2 is 7। say right hand side is 7। okay, which is equal to right hand side। अभी क्या मिला है, हम लोग सक्सेस हो गया, ट्राई किया है तो सक्सेस हो गया। ओके, सो p is equal to 1 is the solution of this equation, therefore p is equal to 1 is the solution of equation 5p plus 2 is equal to 7। The next question is 3m minus 14 is equal to 4। ट्रायल एंड एरर मेथड में m का वैल्यू फाइंड करना है। जो वैल्यू के लिए राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। ठीक है, इफ वी पुट m इज इक्वल टू 0, इसमें देखिए m इज इक्वल टू 0 पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है -14 व्हिच इज स्मॉलर देन 4, बहुत छोटा है। अगर 1 पुट करने से 3 into 1 3 minus 14 दैट इज -11, ये भी बहुत छोटा है। सो हम लोग इसमें थोड़ा ग्रेटर नंबर पुट करेंगे ताकि कम से कम 4 का आसपास में आ जाए। ओके, इफ m is equal to 2 then left hand side is equal to thrice m minus 14, that is 3 into 2 minus 14, 3 to the 6 minus 14, that is -8, which is not is equal to right hand side। okay, so m is equal to 2 is not a solution of this equation। next we'll put if m is equal to 4 then left hand side is equal to thrice of m minus 14 minus 14, 3 into m का वैल्यू है 4 minus 14, 3 4s are 12 minus 14 is equal to -2, which is also not is equal to right hand side। okay, so m is equal to 4 is not a solution of this equation। हम लोग ट्राई कर रहे हैं, अभी तक आंसर नहीं मिला है, सोल्यूशन नहीं मिला है। अभी नेक्स्ट ट्राई में हम लोग क्या पुट करेंगे, 2 में राइट हैंड साइड मिला है -8, 4 के लिए राइट हैंड साइड मिला है -2, अभी 5 के लिए और 6 के लिए देख सकता है। ओके, अभी 6 के लिए देखूंगा। ओके, सो इफ m is equal to 6 then left hand side is equal to thrice m minus 14, that is thrice of m, that is 3 into m, the value of m is 6 minus 14, 3 6 are 18 minus 14 which is equal to 4, that is right hand side। so अभी फाइनल जो ट्राई किया है, ये ट्राई में हम लोग को क्या मिला है, सोल्यूशन मिल गया, दैट इज राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल मिला है। हेंस m is equal to 6 is the solution of this equation। therefore m is equal to 6 is the solution of thrice of m minus 14 is equal to 4। okay,